Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, we've already spoken about things around us, okay? Like we've spoken about the universe, we've spoken about the environment. So children, जब हम देख रहे थे कि when we were talking about our earth, okay, अपने earth के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा earth में बहुत सारे countries हैं, okay? There are a lot of countries that are present on our planet Earth. Okay, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंट्रीज. सो ये कंट्रीज क्या है? एक्चुअली ये जो कंट्रीज होती है दे आर डिफरेंट प्लेसेस, ओके, दैट आर सिचुएटेड ऑन द लैंड एरियाज. ओके, सो जैसे जैसे लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन हाउसेस एंड बिल्डिंग सिटीज़ एंड विलेजेस एंड टाउन्स. तो ये हो गए कंट्रीज़ फॉर्म हो गए यहाँ पे ऑन द surface of earth. Now we also live in a very beautiful country which is known as India. So let's talk about India, our country, in this chapter. So जैसे हम देखेंगे कि India as a country has everything in it. Okay, we have mountains, we have plains, we have plateaus, we have sea, oceans around us. So let's talk about India, our country, in detail in this chapter, and we are going to learn about the landforms of India, okay, the northern mountains, the northern plains, Indian desert, the southern plateau, the coastal plains and the islands. So what are the different landforms of India? Okay, so as we all know, India is a vast and beautiful country. India is located in the continent of Asia. Its land surface varies from place to place and is the best example of unity in diversity. Okay, so जैसे हमें पता है कि our world is divided into continents and oceans. Okay, so India is what? India is a continent. India is a part of a continent. Which is the continent that India is a part of? India is a part of Asia, जो एक continent बन जाता है. Okay, so India आप देखोगे it is very vast, काफ़ी बड़ा है and it is a very beautiful country. Okay, so India का जो land surface है from place to place is totally different. Okay, it varies, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का environment आपको नज़र आता है. Okay, and that is the reason why it is one of the best examples of unity in diversity. Okay, so diverse होके भी अलग अलग होके भी we all are together as one country. Okay, as one nation. So India is the 7th largest country. It is the most populous country globally with a population exceeding 142 crores as of 2023. It has a total area of about 3.28 million kilometers square. Okay, now its length, okay, from Jammu and Kashmir in the north to Kanyakumari, okay, in the south is about 3,214 kilometer, and its breadth from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in east is about 2,933 kilometer. So India जो है it is 7th largest country in the world, and India का population जो है it is the highest in the world. Okay, it is at number 1 now. Earlier China was at number 1, but now India has come at number 1 with regards to the population, that is the number of people living in the country. Okay, now it is exceeding around 142 crores as of 2023. Now total जो area है, okay, of India is 3.28 million kilometers square. Okay, so it is so vast. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से देखोगे till Kanyakumari, so if you start from Kashmir, okay, and you want to go to Kanyakumari, how many kilometers you have to travel? You have to travel around 3,214 kilometers. अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो आपको
2933 kilometers travel करना पड़ेगा. That is the distance between these two states. Okay. Now, geographically, India is divided into 6 geographical regions. Okay. One, the northern mountains. The second is the northern plains. Third is the Indian desert. Then you have the southern plateau. Then you have the coastal plains, and then you have the islands. So, geographically, it is divided into 6 regions. Okay. So, now let's talk about them in detail. Let's begin with the northern mountains. So, north side पे जो mountains है, let's talk about them. What are they called? These northern mountains, okay, they are called as Himalayas. Okay. It is the world's highest mountain range, always covered with snow. Rivers such as Ganga, Yamuna and Brahmaputra rise from its melting snow. So, जो snow melt होता है of the Himalayan mountains, उसकी वजह से आते हैं हमारे अलग अलग types के rivers, okay, जिसमें है गंगा, यमुना and Brahmaputra. Okay. Now, slopes of the Himalayas, they are covered with dense forest. Okay. These forests give wood and provide shelter to many wild animals. Tigers, elephants, rhinoceros and deer, they are found in these forests. So, apart from getting water, okay, पानी तो हमें मिल ही रहा है हिमालय से. जब वो snowfall होती है, आप देखोगे हिमालयन रेंज जो है वो totally covered with, it is totally covered with snow. Okay, ये जब snow melt हो जाता है because of the heat coming from the sun, हमें मिलता है water in the form of rivers. Okay. Now, apart from that, okay, आप देखोगे mountain areas, उस पे होते हैं बहुत सारे forests. Okay, there is lot of dense forest on this. Okay, बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे हैं. Okay, so these forests, in forest से हमें मिलते हैं wood. Not only that, they are also shelter. Okay, they also provide shelter to wild animals. Wild animals कहाँ रहते हैं? Forest में रहते हैं. Okay. So, for example, you have wild animals like the tigers, elephants are there, rhinoceros are there, deer. Okay. They generally are found in the forest. Okay. Now, they are the largest and the highest mountain ranges in the world. There are many high mountain peaks. The highest mountain peak in the Himalayas is the Mount Everest, okay, which is 8,848 meters in Nepal. So, Himalayas जो है, they are very large, okay, they are one of the highest, okay, mountain ranges. Okay. तो अगर आप sea level से उसको count करोगे कि कितनी दूरी पे है ये, so they are around 8,848 meters higher. Okay, from the sea level. So, sea level से Mount Everest का जो mountain top है, okay, top जो चोटी है Mount, the peak, वो है around 8,848 meters height पे, okay, and these Mount Everest are situated in Nepal. Okay. Now, let's talk about, since we've already spoken about the mountain, that was a part of the mountain. अब आते हैं on towards the northern plains. Okay. Now, the northern plains, they lie to the south of the Himalayas. So, Himalaya के जो south, okay, जो निचला हिस्सा जो है, those are known as the northern plains. Okay. It is large, it is flat and level area of land. Okay. And so, any area which is large, flat and level area of land, it is known as plains. Okay. The Himalayan rivers water it and make the area fertile. So, जैसे पानी आता है from the melting snow, okay, and gets into these areas which are the plain areas, okay, the flat areas, or you know the large flat areas which are leveled, okay, where do they get the water from? They get the water from the melting snow or from the rivers that flow down from the Himalayas. Okay. Now, these rivers, they bring fertile soil with them. Okay. Thus, the northern plains are suitable for producing a large variety of crops. So, वो जो पानी जो बहता है from the mountains,
उसके साथ साथ बहते हुए पानी के साथ साथ आता है सॉइल, और जो ये सॉइल होता है इट इज़ वेरी यूजफुल to grow a variety of crops because it has all the things that are suitable, okay, for a good yield of crops. Okay, now these plains, they are densely populated. Many important cities of India fall in the northern plains. The total area of the northern plains is about 7 lakh square kilometers. Okay, so जो ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्लेन एरिया में पीपल स्टार्ट लिविंग देयर, ओके, बिकॉज द क्लाइमेट इज सूटेबल. इज इट सूटेबल फॉर एवरीवन टू लिव इन माउंटेन्स? माउंटेन में क्या सब लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, बट प्लेन्स में सब सर्वाइव करते हैं बिकॉज यहाँ पे द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके, आर सच दैट दे आर फेवरेबल, ओके, फॉर पीपल टू लिव देयर. सो आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो एरियाज हैं दे आर क्वाइट डेंसली पॉपुलेटेड. ओके, सो यू हैव एरियाज लाइक मे बी पंजाब, ओके, विच इज़ इन द नॉर्दर्न एरिया. यू हैव जम्मू कश्मीर विच इज़ इन द नॉर्दर्न एरियाज. सो दीज एरियाज विच आर देयर दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, ओके, एंड पीपल ग्रो क्रॉप्स देयर, they get water there, and that is the reason why they can survive over there. So the total area of the northern plains is about 7 lakh square kilometer. Okay, now let's talk about Indian desert. In the northwestern part of India lies a desert. It is covered with sand and gets little or no rainfall. Okay, it remains hot and dry. It is also called the Thar desert. So we've already spoken about areas where it is very suitable, you know, for a human survival. Okay, people can live there, they can survive there. So we have already spoken about the northern mountains, we've spoken about the northern plains. So now let's talk about Indian desert. Okay, in the northwestern part of India lies a desert. It is covered with sand and gets little or no rainfall. It remains hot and dry. It is also called the Thar desert. So बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने तो देखा नॉर्दर्न प्लेन्स को देखा, हमने माउंटेन्स भी देखे, हमने प्लेन एरिया भी देखा. अब आते हैं टुवर्ड्स द डेजर्ट. ओके, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. सो एरियाज जहाँ पे बहुत सारा डेजर्ट होता है, वहाँ पे बहुत सारा सैंड होता है. ओके, सो ये जो एरिया है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है. ओके, नाउ दिस इज नोन एज द नॉर्थ वेस्ट एरिया. ओके, और ये जो डेजर्ट आता है, ओके, जो रेगिस्तान आता है उसका नाम है Thar desert. Okay, which is very hot, very dry. यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ड्राई होता है, बारिश जैसे ना के बराबर होती है. Okay, now most of this desert it lies in the Indian और Thar desert. Okay, बहुत मतलब जो डेजर्ट का जो परसेंटेज है बहुत सारा इंडियन और थार डेजर्ट में आ जाता है. इट हैज़ सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स. सो जो आप देखोगे, अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा तो रेगिस्तान जब दिखाते हैं तो उसमें वो दिखाते हैं सैंड के ऐसे माउंटेन्स बने हुए. तो ये सैंड के जो माउंटेन्स बने होते हैं उनको कहते हैं सैंड ड्यून्स. ओके, इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, वेरी कोल्ड एट नाइट. Life is very difficult here. Most villages are built near oases. The people keep moving from one place to another in search of water. So बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसका इट इज़ नॉट सूटेबल, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, वेरी ड्राई. ओके, गला सूख जाता है. इफ़ यू सी क्लाइमेटिक कंडीशन में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को ठंड होती है. सो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं जनरली ओएसिस के पास, मतलब जहाँ पे पानी मिलता है उस एरिया में ज़्यादा करके अपनी बस्ती बना देते हैं. कभी कभी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर. ओके, बिकॉज वी ऑल नो सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. ओके, सो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. बट आप देखोगे डेजर्ट में ट्रैवल करने के लिए इनके पास एक साथी होता है. हु इज़ दिस पर्सन? ओके, हु इज़ दिस? ओके, हु ट्रैवल्स विद देम और हु टेक्स देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो उनके पास होता है ऊंट, दैट इज़ द कैमल. कैमल को कहलाते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट. सो ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी
हेल्प करता है. ओके, द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज. सो कैमल के पास जो होता है एक हम्प होता है, उस हम्प के अंदर पानी और फूड स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से एंड कैमल बहुत दिनों तक विदाउट फूड दे कैन सर्वाइव. ओके, सो नाउ, so do you know the Thar Desert is the 7th largest desert in the world and covers 2 million square kilometer area spread both in India and Pakistan. So ये जो थार डेजर्ट है, ओके, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है. ओके, और ये है डिवाइड हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, और जो एरिया ये कवर कर रहा है, इट इज़ कवरिंग अराउंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, इतना बड़ा है, इट इज स्प्रेड अराउंड सो मच. ठीक है. नाउ द सदर्न प्लेटू, अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इज अ प्लेटू. अ प्लेटू इज अ हाई फ्लैट लैंड. दिस प्लेटू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटू. इट इज रॉकी, इट इज लॉट ऑफ मिनरल. Okay, there are a lot of minerals that are found here. This plateau is not as fertile as the plains. Some of the rivers flow in this area. They are the Krishna, Godavari, Kaveri, Narmada and Tapi. Okay, or Tapti. These rivers water, okay, the areas of this plateau. जैसे हमने northern areas देखे, वैसे ही south में बच्चों there is this area, okay, which is called southern plateau. Okay. अब प्लेटू क्या होता है? प्लेन्स तो हमें पता है कि फ्लैट होते हैं. ओके, दे आर लार्ज फ्लैट एरियाज. जो प्लेटू होते हैं दे आर स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, ऑन अ हिली साइड. इट इज़ अ हाई फ्लैट लैंड. फ्लैट लैंड ही होता है बट थोड़ा सा हायर साइड में होता है. इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्लैट. ओके, नाउ ये जो प्लेटू है इसको कहलाते हैं डेक्कन प्लेटू. सो सदर्न एरियाज का जो प्लेटू होता है उसको कहलाते हैं डेक्कन प्लेटू. ओके, और ये होता है रॉकी. बिकॉज इट इज़ रॉकी, काफ़ी सारे रॉक्स होते हैं यहाँ पे, पथरीला होता है, उसकी वजह से ओके बहुत सारे मिनरल्स आर फाउंड इन दिस एरिया. ओके, दिस प्लेटू इज़ नॉट एज फर्टाइल. फर्टाइल मतलब फर्टाइल एरियाज में इट इज़ गुड फॉर प्लांटेशन. जो फर्टाइल एरियाज होते हैं वहाँ पे क्रॉप्स हो सकती है, फार्मिंग हो सकता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे प्लेन्स में होता है. सो प्लेटूज में इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, ओके, टू डू ऑल दीज because it is not so fertile. So still we have lot of rivers that flow in this area. Okay, उसके बावजूद there are lot of rivers that flow in this area like the Krishna river हो गई, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती. Okay, so ये जो rivers है, इन rivers की वजह से एरियाज जो होते हैं डेक्कन प्लेटू की जो एरियाज हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. सो अगर आप इस मैप को देखोगे तो यू द पिंक हाईलाइटेड जो एरिया है दैट्स इज ऑल, इट रिफ्लेक्ट्स द सदर्न प्लेटू. ओके, और आप यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम ऑफ द प्लेटू कि कैसे दिखता है, प्लेटू वाली जो एरियाज होती है वो कैसे दिखती है. ओके, इट इज़ वेरी रॉकी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. ओके, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था, वी हैव स्पोकन अबाउट कोस्ट. कोस्ट क्या होता है? कोस्ट इज़ द एरिया जहाँ पे लैंड एंड द सी दे मीट. ओके, जहाँ पे धरती और समुंदर जो है वो मिलते हैं. ओके, दैट एरिया इज नोन एज द कोस्ट. ओके, नाउ coastal plains of India lie to the east and west of Indian plateau. The coastal plains are categorized as western coastal and eastern coastal. So ये coastal areas जो है वो आप देखोगे इंडिया के मैप पे, they are always towards the sides of the Indian. So यहाँ पे जहाँ पे समुंदर और लैंड मीट हो जाता है, these are all the coastal areas. जनरली ये ईस्ट में है और वेस्ट में है. ओके, सो दैट इज़ वाई इनको कहलाते हैं वेस्टर्न कोस्टल या फिर ईस्टर्न कोस्टल. ओके, नाउ कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं. ओके, एंड दे आर डॉटेड बाय स्मॉल हिल्स एट सम प्लेसेस. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. मैनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. सो ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं, मतलब ब्रॉड नहीं होते. ओके, एंड
उस पर छोटे छोटे हिल्स होते हैं, माउंटेन्स नहीं होते, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं हायर रेज्ड एरियाज उनको कहलाते हैं हिल्स। तो इन कोस्टल प्लेन्स में भी हिली एरियाज होती है। ओके, जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया का जो प्लेन्स है वो काफ़ी ब्रॉड है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कंपैरिजन में ईस्टर्न वाले साइड काफ़ी ब्रॉड होता है, वेस्टर्न वाला साइड थोड़ा नैरो है। ओके, एंड इन कोस्टल एरियाज में यू हैव लॉट ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ऑल्सो दैट फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। सो जैसे ये हिल्स की वजह से आपके पास वाटरफॉल्स होते हैं जो रिवर्स में मिल जाते हैं। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ इन एरियाज में पानी वहाँ से मिलता है थ्रू द रिवर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइलैंड। ओके, सो आइलैंड मतलब द्वीप। ओके, सो there are two groups of islands in India. Okay, one in the Arabian Sea is called the Lakshadweep, and the other group in the Bay of Bengal which is called the Andaman and Nicobar Islands. So ये जो आइलैंड है, द्वीप समूह जो है, उसमें आता है अरेबियन सी में जो मिलता है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, और बे ऑफ बंगाल की तरफ जो चेन्नई बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आता है वो आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, नाउ सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज इन द निकोबार आइलैंड्स। सो इंडिया का साउथ का जो एरिया है, जैसे चेन्नई हो गया, ओके, ये सब आ जाते हैं इन द विच एरिया, दे ऑल कम इन द निकोबार आइलैंड्स में आते। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट। ओके, दे आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज़ लाइक अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। बहुत से लोग वेकेशंस में इन जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए एंड देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे। ओके, सो इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एरिया टू विजिट। ओके, इट इज़ वेरी ग्रीन। ओके, you have the sea there, you have the beaches there. Okay, so let's look at the map which shows the coastal plains and islands in India. So अगर आप देखोगे इसमें आप जो भी एरियाज जो साइड में जा रहे फ्रॉम गुजरात टू तिरुवनंतपुरम और फ्रॉम भुवनेश्वर towards the southern areas, okay, that is the Thiruvananthapuram side, this is all called the eastern. ओके, जो गुजरात से लेके नीचे तक जा रहा है, तिरुवनंतपुरम तक जा रहा है, वो है वेस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स, और जो भुवनेश्वर से जाके नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम, दे आर नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, नाउ इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड ऐसा एरिया होता है लैंड का जिसके आसपास सब जगह पे है सी। ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय सी, समुंदर। ओके, नाउ both groups of islands are rich in timber, fish, corals and other marine products. So ये दोनों islands जो हैं यहाँ पे बहुत सारे forest areas हैं। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के fish मिलते हैं, कोरल्स मिलते हैं, कोरल्स आपको मिलते हैं समुंदर के नीचे वाले हिस्से में। ओके, एंड मरीन प्रोडक्ट्स, तो जो भी समुंदर वाली चीज़ें होती है ज़्यादा करके, जैसे शेल्स हो गए, ओके, यू फाइंड इट मोर इन दीज एरियाज। ओके, नाउ चलो लेट्स डू द ग्लॉसरी एंड सी द न्यू वर्ड्स दैट वीव लर्नड। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, अलग अलग तरीके की चीज़ें। ओके, फर्टाइल, लैंड दैट प्रोड्यूसेस गुड क्रॉप्स। फर्टाइल मतलब वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, जहाँ पे अलग अलग किस्म के क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। ओके, पेनिनसुला इज़ एन एरिया ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ओके, सो पेनिनसुला ऐसा एरिया होता है जहाँ पे तीनों साइड पे, उसके तीनों साइड पे पानी है, एक साइड पे लैंड आता है और बाकी तीनों साइड पे सिर्फ देयर इज ओनली वाटर, दैट एरिया इज नोन एज पेनिनसुला। ओके, नाउ लेट्स डू द क्विक समरी ऑफ दिस चैप्टर। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर कॉल्ड द हिमालयस। ओके, जो माउंटेन्स नॉर्थन साइड पे है वो है हिमालयस। ओके, दैट मीन्स उत्तरी हिस्सा जो है इंडिया का, इट इज़ द हिमालयस। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। हिमालयस के निचले वाला जो हिस्सा है वो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। द कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट। ऊँट, ओके, इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फॉर पीपल्स, फॉर द लाइफ ऑफ पीपल इन
द डेजर्ट एरिया. ओके, देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. आइलैंड के 2 ग्रुप्स हैं. ओके, वन इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा आता है लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इज अ प्लेटू. प्लेटू में क्या होता है? इट इज रॉकी एंड देर आर लॉट ऑफ मिनरल्स इन इट. ओके, एंड प्लेटूज आर नॉट फ्लैट. प्लेन्स की जैसे फ्लैट नहीं होते और थोड़े से ऊंचे होते. ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. In which part of India is Arunachal Pradesh situated? East, north or west? So Arunachal Pradesh, if you look at the map, तो map पे अरुणाचल प्रदेश कौन सी तरफ है? Okay, it is on the east, east की तरफ है. Okay, now India is divided into 6 regions. Northern mountains, okay, northern plains, southern plateaus, islands, deserts. So we've done all these things, so remember that. ठीक है, फिर the Mount Everest is situated in India, Nepal और श्रीलंका. Mount Everest कहाँ पे है? It is in Nepal. Okay, the Indian desert is also known as Thar, Sahara और Plateau. Indian desert is उसका दूसरा नाम है थार डेजर्ट. और ये थार डेजर्ट कहाँ पे है? इट इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट की तरफ है और डिवाइड हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. Okay, India is the dash largest country in the world. 7th, 3rd or 10th? 7th. Okay, now fill in the blanks. India has a total area of about 3.28 million square kilometer. The length of India, okay, is length मतलब नॉर्थ से साउथ तक. ओके, वो कितना है? 3214 किलोमीटर्स. और ब्रेथ मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक. ओके, दैट मीन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट वो होता है कितना है? 2933 किलोमीटर. द थार डेजर्ट हैज़ सैंड हिल्स. सैंड के जो माउंटेन्स बने हुए होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? उनको कहलाते हैं सैंड ड्यून्स. ओके, द डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट. डेजर्ट में कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा मिलता है? हमें मिलता है कैमल, ऊंट. ओके, राइट, ट्रू और फॉल्स? ओके, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. नो, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड. ओके, सो दिस इज फॉल्स. इट इज़ नाउ द फर्स्ट. इसके पहले कौन था? कौन सी कंट्री थी? इसके पहले थी चाइना. ओके, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया are called eastern and western coastal plains. Yes, true. The northern plains lie to the north of the Himalayas. Yes. Okay. A large part of South India is a plateau. True. Okay. South India का काफ़ी सारा हिस्सा plateau है. Okay. The Lakshadweep Islands are situated in the Bay of Bengal. No. This is false. They are situated कहाँ पे? In the Arabian Sea में. Bay of Bengal में होते हैं Andaman and Nicobar Islands. Okay. Now match the columns. The Himalayas. Where are the Himalayas? They are in the north. Okay. The Thar Desert. Thar Desert is in the Rajasthan. Rajasthan is a part of Thar Desert. Okay. Lakshadweep. Lakshadweep कहाँ पे है? In the Arabian Sea. Deccan Plateau. Deccan Plateau is triangular in shape. Okay, and the Ganga is flows where? In the northern plain. Okay, now answer the following questions. Before you answer this, quickly reread the chapter. Chapter फिर से पढ़िए. Okay, because आपको इनके answers बताने. Okay, you have to write the answers. Write all the geographical regions of India. जैसे कि हमें पता है India is divided into कितने regions में? 6 regions, अलग अलग regions. So mention ये कौन से regions हैं और उसके बारे में थोड़े थोड़े 2 lines about each of them. Now describe briefly the southern plateau of India. तो southern plateau जो है इंडिया का उसके बारे में आपको लिखना है, डिस्क्राइब करना है briefly. Okay, what कहाँ पे है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है और उसमें क्या क्या आता है. सिमिलरली नदर्न माउंटेन्स के बारे में आपको बताना है. ओके,
द नदर्न माउंटेन्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, फिर उसमें जो भी रिवर्स फ्लो होती है उन माउंटेन्स में, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट. माउंटेन्स पे क्या क्या मिलता है आपको, ओके. द फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है वो सब आपको इसमें शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना है, ओके. राइट अबाउट द इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है, कौन से एरिया में है, और डेजर्ट में सैंड ड्यून्स के बारे में आपको बताना है, एंड ऑल्सो द कैमल, ओके. लोग कहाँ रहते हैं, ओके. डू दे लिव इन वन प्लेस ओनली, ओके, या फिर वो ट्रैवल करते हैं. जस्ट डिस्क्राइब अबाउट दैट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 2 groups of islands of India, the 2 groups of islands, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. So उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है. क्लियर? नाउ लेट्स डू द एनहांसिंग स्किल्स. Why are the northern plains densely populated? So जैसे कि हमने इसमें देखा है कि नदर्न प्लेन्स वाले जो एरिया होते हैं वो फ्लैट एरियाज होते हैं. वहाँ का सॉइल जो होता है वो फर्टाइल होता है, जहाँ पे क्रॉप्स लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप की फार्मिंग हो सकती है, ओके. उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो लोगों को सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए काफ़ी सूटेबल होती है. इस वजह से नदर्न एरिया प्लेन्स की जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा करके बस्तियाँ होती है, ओके. Now, mark the names of landforms found in India on the map of India. So, India का मैप लाके आपको अलग अलग landforms को मार्क करना है. This is a project for you. Make a project on the importance of the Himalayas. Himalayas क्यों important है, okay? आपको बताना है, and you have to make a project on that. ठीक है? So, life skills. Write the following. तो आपको यहाँ पे 2 लैंडफॉर्म्स फाउंड इन इंडिया लिखनी है, 2 रिवर्स के नाम जो नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में बहने वाली 2 नदियों के नाम, साउथ इंडिया में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखने, ओके. आपकी चॉइस के, आप कोई भी लिख सकते हो. सो बच्चों, बिफोर यू गेट ऑन टू दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट करने से पहले आपको चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, आपको सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, एंड देन फिर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंड देन चिल्ड्रन यू कैन कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग एक्टिविटीज. सो गेट गोइंग.